Good morning, all of you. Myself, Kamlesh Singh, PhD Social Science. Welcome you all in my live session. Today's topic is consumer rights. Consumer rights. It is the fifth topic of economics. This is the last topic of economics. This is chapter 5. Before we start the topics, I want to tell you what is consumer and what is rights. कंज्यूमर क्या होता है, राइट्स क्या होता है. किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले यू हैव टू थिंक अबाउट फोर क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाट, सेकंड इज व्हेन, थर्ड इज व्हाई एंड फोर्थ इज हाउ. We will read in this chapter and discuss about what is consumer rights, when was it implemented, and why was it required, and how is it being implemented in present scenario. But what is consumer? Consumer क्या होता है? For example, आप जो भी मार्केट में जाता है, जो भी सामान खरीदते हो आप, तो आप क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए. इट मीन्स मार्केट में जो भी व्यक्ति सामान खरीदने जाता है और मार्केट से सामान खरीद कर लाता है, वो कंज्यूमर हो गया. और राइट्स क्या होता है? राइट्स मीन्स हमारे कुछ अधिकार है. जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके कुछ राइट्स हैं. तो इस पूरे चैप्टर में we will discuss about the consumers and consumer rights. Basic terms. Before we start the chapter, we have to learn about some basic terms which will be used in the chapter. Basic term. Consumers. I told you in Hindi what is the meaning of consumer. If you are going to the market, you are buying something from the shop, it means you are consumer. For example, you are going to a stationery shop and you are buying some books, some pencils or some stationery, that means you are consumer. Any person who buys a commodity. What is commodity? Commodity is the things. Commodity, it in the meaning, commodity you can say in Hindi, जो भी वस्तुएं होती है, जो भी चीजें होती है, उसको हम commodities बोलते हैं. Means you are going to market and buying vegetables. The vegetable is a commodity. Or service for use is known as consumer. Now, what is the service? For example, you are going somewhere else, you are going by the bus, then you are paying the fee for the transportation, that is service. You are staying in the hotel, you are paying some money for the staying in the hotel, that is called services. You are using phone, the phone is also come under the services. It means as a person you are buying a commodity or using the services, that means you are the consumer. You have to remember the definition of consumers. Any person who buys a commodity or service for use is known as consumer. Consumers' rights. I told you there are some rights are given by the central government or state government or the local bodies. The rights which we deserve is called consumers' rights. In the chapter, there are 6 consumer rights. These are right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. Now, what is the right to safety? Means you are buying anything in the market. Do you have to right to be safe, right to inform? The information related to commodities or services, the all information should be given by the producers. That is the right to inform, right to choose. For example, you have to choose the things, which things you want to buy, which things you don't want to buy.
It means you have to write to choose any items from the shop. For example, you are going to sports shop, you can buy Adidas shoe, you can buy Reebok shoe, you can buy any company's product. That is the right to choose. Right to be heard. राइट टू बी हर्ड, व्हाट इज द राइट टू बी हर्ड? जो भी चीजें हैं, जो भी कंज्यूमर का राइट्स है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए एंड दैट शुड बी हर्ड बाय द यू एंड टोल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। इट मींस आपको सिर्फ सारी चीजें जो प्रोड्यूसर है वो आपको बताएगा सो दैट यू कैन यूज राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल। Now, what is redressal? जो redressal है, वो redressal क्या होता है? Redressal means you have some problem, the problem is being solved by authorities, is called redressal. Means अगर आपको कोई problem है related to किसी सामान से, तो वो problem जब solve होता है, तो that is called राइट टू सीक रिड्रेसल। मतलब अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको अधिकार है और वो समस्या किस स्टेप बाय स्टेप करना है वो आपको आगे इस चैप्टर में बताया जाएगा। राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन? तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि जो भी कंज्यूमर है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो एजुकेट होना चाहिए। इट मींस द कंज्यूमर शुड नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द एनी कमोडिटीज और एनी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू द शॉप एंड बाय समथिंग, यू हैव टू नो ऑल द पॉलिसीज, ऑल द रूल्स रेगुलेशन टू रिलेटेड दैट आइटम्स। तो ये जो 6 राइट्स हैं आपको याद करने हैं, आपको रिमेंबर करने हैं, ठीक है। तो ये सारे एक कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं, ओके। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, आपने ये वर्ड देखा एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सप्लॉयटेशन है, तो एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है? जब किसी का शोषण किया जाता है। शोषण का मतलब जब आपका कोई राइट है, फॉर एग्जांपल you are deserving something but due to some reason or due to some problem you are not getting that things, okay, then it is being exploited by someone. तो consumer exploitation, तो there are 6 rights. If any right is violated from producers, that means this is a consumer exploitation. तो जो कंज्यूमर का मीनिंग होता है उसको हम हिंदी में उपभोक्ता बोलते हैं। एक्सप्लॉयटेशन मींस क्या होता है? शोषण। तो जो उपभोक्ता का शोषण है वो क्या है, किसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज अ सिचुएशन इन व्हिच अ प्रोड्यूसर्स और अ ट्रेडर delivers much less than what they had initially promised to the consumer. अभी वायलेशन कब होगा, एक्सप्लॉयटेशन कब होगा कि आपने इसमें देखा कि अगर आपको किसी प्रोड्यूसर ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 1 kg या 10 kg इतने रुपीस में आपको सामान देने वाला हूं, बट वो क्या कह रहा है कि आप पैसे तो दे रहे हो 10 kg का, बट वो सामान कितना दे रहा है? 9 kg। इट मींस आपको 1 kg लेस दे रहा है। और अदरवाइज आपने बात किया कि मुझे स्पोर्ट्स शू चाहिए, बट वो स्पोर्ट्स शू के बजाय कोई और सामान डिलीवरी कर रहा है, तो दैट मींस कि आपने कुछ और बोला और उसके बदले में उसने आपको कुछ और दिया। इट मींस इट इज, वो क्या हो रहा है? ए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, मतलब आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट क्या होता है? आपने देखा होगा जो मूवमेंट है, मूवमेंट का बेसिकली जो इन हिंदी में नहीं होता आंदोलन, डेमोन्स्ट्रेशन। तो कंज्यूमर मूवमेंट आपको यू हैव टू थिंक इन योर माइंड कि कंज्यूमर मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, तो
अभी कंज्यूमर जो राइट्स है उसका जो जरूरत क्यों पड़ा, व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड, तो हमने देखा था कि काफी दिनों से, काफी मतलब सालों से जो कंज्यूमर से उनका क्या हो रहा था, जो राइट है उनका वायलेशन हो रहा, वायलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में जाते हो तो व्हाट विल हैपन, यू आर बाइंग समथिंग एंड यू विल गेट less amount or bad qualities, but you are paying the amount of good qualities and the good quantity। तो उसके वजह से जो कंज्यूमर थे उन्होंने क्या किया, जो प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि उनको जो राइट है वो राइट मिलना चाहिए, राइट नहीं मिल रहा था इस वजह से। तो क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट इज अ ग्रोइंग realization that the interests of the consumers need to be protected against the unscrupulous sellers। तो जो अनस्क्रूपुलस सेलर्स होते हैं, जो मतलब ऐसे सेलर्स होते हैं जो चालबाजी करते हैं, बदमाशी करते हैं और मतलब उनके अंदर एक चालाकी होती है, तो ऐसे सेलर्स जो कंज्यूमर्स को धोखा देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, what is consumer protection? The law which protect the consumer is called consumer protection। The consumer protection are all those measures that protect the rights of the consumers। वो जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं जो कंज्यूमर की राइट को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। Now the act, what is the meaning of act? Act तब होता है जब any policy is being made by the state government or central government, that policy is called act। तो एक कानून बनाया जाता है, कानून कौन बनाती है, या तो केंद्र सरकार बनाएगी या तो राज्य सरकार बनाएगी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लॉ बनाया था, ठीक है। तो क्या बनाया था, दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1986। तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1986। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोपरा। तो एग्जाम में कभी कभी आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोपरा, COPRA। कोपरा मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1986। तो कब पास हुआ था, 1986। इट मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 1986 में एक पॉलिसी बनाई थी and that policy was COPRA, and the COPRA Consumer Protection Act, this act was passed in 1986. This act provides for the establishment of consumer dispute redressal agency at district, state and national level। I told you previously classes there are three level of the government, one is district, that is local bodies, and other is state, and third is national level। So in 1986 government has made the act name was Consumer Protection Act, and this act how can help this act to the consumer, this act to help the consumer for the consumer disputes redressal agencies at जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, इस लेवल पे जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है, दैट ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व अंडर द कोपरा 1986। I hope you have to understand what is COPRA and when it was passed and what is the work and function of the COPRA। एक मार्क, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों पे ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ एग मार्क। ये किसका है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मींस जो सामान आप बाई करने जा रहे हैं
You are going to the market and you are buying some item which is marked and sealed by the egg mark. It means that item is very safe for your use. Okay, that item was certified by the government of India. So this is the symbol of egg mark. Now, what is the basic things of egg mark? The egg mark is a seal of government that guarantees the quality of few selected agriculture products. You have to remember these words and this sentence. This is the agriculture products. The egg mark seal will be implemented on only agriculture product that will not be used on the industrial product. It is and this guarantee the quality ये क्या है? This seal is providing the quality of the guarantee the quality of few selected agriculture प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है उसके क्वालिटी का गारंटी कौन देता है? ये देता है एग मार्क. इट मींस इफ देयर इज ए मार्क ऑफ एग मार्क दैट मींस दैट आइटम इज ऑफ अ गुड क्वालिटी. इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट 1937. और ये एग मार्क जो है ये कब से ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट 1937. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट कब बन गया था? 1937. दिस एक्ट वाज मेड बिफोर बाय द 1986. In 1986 COPRA was implemented, but before COPRA agriculture product act was enacted in 1937, but this act was amended in 1986 and it was mixed with the COPRA 1986. Its products like honey, masala, spices. तो आपने इसमें देखा कि ये जो जितने भी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल हनी, मसाला, स्पाइसेस, all items are related to the agriculture. And this agriculture product act 1937 has been submerged in 1986 amendment. So I think you have understand what is the egg mark and why it is required and what is the benefit of egg mark. You have, whenever you are going to the market, you are buying something, you have to notice there is a egg mark seal or not. If you are buying the egg mark seal items, it means you are buying the good quality item. What is BIS? BIS क्या होता है? आप में से कोई भी ज्वेलरी के शॉप पे गया होगा तो आपने देखा होगा कि आप बार बार पूछते हैं कि उसमें BIS सिंबल है कि नहीं है, हॉलमार्क सिंबल है कि नहीं है. तो ये जो चीजें हैं ये किसके लिए होता है? अभी आपको हम इसको बात पढ़ाएंगे BIS है क्या. तो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. व्हाट इज BIS? BIS stands for Bureau of Indian Standard. The full form of BIS is, I repeat it again because it is very important for your exam. BIS stands for Bureau of Indian Standards. This protects the consumers from lack of quality and varying standard of industrial and consumer goods. तो आपने देखा कि this is also providing the quality of things, but that things is related to the industrial and consumer goods. But egg mark is related to the agriculture product. You have to remember and you have to differentiate what is the BIS and what is the egg mark. Means आपको ये बात पता होना चाहिए कि BIS क्या है और एग मार्क क्या है. भैया आपने देखा कि एग मार्क किसके लिए होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है.
और BIS किसके लिए होता है? इट इज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, जो कोई भी मेटल का सामान लेने जा रहे हो, कोई चीज मेटल का बना हुआ है, तो आपको वहां पे देखना है कि ये BIS ऑथराइज है कि नहीं है। ये जो सिंबल है मानकः पथ प्रदर्शकः, तो ये जो BIS का सिंबल है उस आइटम पे गया कि नहीं है। अगर that item was marked with the BIS, that means that item is of a good quality. Okay. What is Codex Alimentarius Commission? तो ये Codex Alimentarius Commission है क्या? तो it develops food standards, guidelines, and codes of practices for production and international trade in food products. अब आपने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो जब भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का नाम आता है तो आपके माइंड में सेम टाइम में क्लिक करना चाहिए कि दिस कमीशन इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड इन फूड प्रोडक्ट्स। ओके, एंड इस कमीशन ने रिकमेंड किया था, डेवलप किया था, इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी। वो पॉलिसीज किससे रिलेटेड था? फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड था। उसमें उन्होंने क्या बनाया था? फूड का स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, व्हाट शुड द स्टैंडर्ड ऑफ द फूड एंड गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस होता है, कुछ कोड्स बनाए थे जिसको हम जो हम रूल्स बोलते हैं, जो पॉलिसी बोलते हैं, उनको उन्होंने अपने कमीशन के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड, कुछ पॉलिसीज एंड कुछ गाइडलाइंस बनाए थे। वो गाइडलाइंस किसके लिए बनाए थे? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बनाए थे। और किस कैटेगरी में बनाए थे? इन फूड प्रोडक्ट्स। I hope you have to understand, you have understood what is the BIS and what is the ECMAR and what is the Codex Alimentarius Commission and what is COPRA and when it was implemented. Okay. Now we are moving to the next slide, the consumer in the marketplace. जो कंज्यूमर होता है वो मार्केट प्लेस में जाता है, तो वहां की क्या सिचुएशन है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट इन द मार्केट प्लेस बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, हाउ कैन बिकम कंज्यूमर? हम कंज्यूमर कब बनते हैं? जब हम मार्केट में जाते हैं और हम उसमें सामान खरीदते हैं, तब हम कंज्यूमर बनते हैं। अगर आप मार्केट में घूम रहे हो तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। When you are buying something, it means you are consumer. So how will you participate in marketplace? You are buying some product. Had there been no consumers, no company would exist. The status of consumers is more or less pathetic as far as consumer rights are concerned. You can take example of shopkeepers paying less than is should companies making false claims on the packs. हमने इसमें देखा कि इससे पहले हमने पढ़ा था कोपरा 1986। कोपरा 1986 क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। बट इन द मार्केट, इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, देयर इज ए वेरी लिटिल यूज ऑफ द कोपरा 1986 because we have seen a lot of forgery cases and lot of things which are happening in the market which are not good for the consumer. क्या क्या होता है मार्केट में? आप जाओगे तो वहां पे देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो सील है उसके ऊपर जो बातें लिखी हुई है वो फॉल्स क्लेम होता है। आप कोई सामान लेने जा रहे हो, आप 1 kg सामान खरीद रहे हो, पता चला घर आया तो 900 ग्राम हो रहा है, 100 ग्राम कम हो गया, 200 ग्राम कम हो गया। तो the situation of consumer is very pathetic, means जो कंज्यूमर हैं, जो भुगता है, उनका रियल अगर सिचुएशन देखा जाए तो बहुत ही पैथेटिक है। और हमको हर जगह, हमारा हर जगह एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मार्केट में जाओगे, फॉर एग्जांपल किसी ने कम उसको मार्क किया, मेजर कम किया, और आपने बोला नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो, बोला ठीक है मैं सामान नहीं दे रहा हूं, आप जाओ कहीं और से ले लो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, आप उस पे देख रहे हो इसका मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, तो अगर आपने देखा कि मैन्युफैक्चर डेट बहुत पहले का है
एक्सपायर होने वाला है, अगर आप उसको बोलोगे कि ये तो एक्सपायर होने वाला है, तो ये नहीं बोलेगा कि ठीक है आप इसके बदले में दूसरा ले लो, इसको रख दो, बोलेगा ठीक है आप कहीं से और ले लो। बट हमारे पास क्या है, वी हैव राइट टू चूज। तो क्या हुआ कि जो राइट टू चूज हमारा राइट्स है वो वहां पे एक्सप्लॉइट हो रहा है। As per Cobra 1986, that shopkeepers should be punished by the law, but in the real situation, it is not being happening anywhere in any market in India. तो यही सारी बातें लिखी हुई है। देयर आर लोकल स्ट्रीट सेलर्स एडल्टरिंग। यहाँ पे एक वर्ड है एडल्टरिंग। एडल्टरिंग क्या होता है, जो हम जमाखोरी करते हैं। जैसे एडल्टरिंग में यहाँ पे एडल्टरिंग वर्ड है। एडल्टरिंग वर्ड में क्या होता है कि सॉरी एडल्टरिंग में होता है जो मिलावटी होता है। जब आप कोई सामान आपने देखा होगा कि जब भी होली दीपावली आता है, जब बहुत भारी मात्रा में शुद्ध बनाया जाता है तो एडल्टरिंग होता है। एडल्टरिंग का मतलब होता है मिलावट। उसमें क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल चीजें मिलानी चाहिए, जैसे मान लो बर्फी बना रहे हैं, चाहे कोई डिश लड्डू बना रहे हैं, तो उसमें जो ओरिजिनल घी मिलाना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट्स मिलाना चाहिए, वो नहीं मिलाते, बल्कि उसमें डुप्लीकेट मिलाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है और जो हमारे कंज्यूमर जो राइट्स है उसको वायलेट करता है। बट ये सब सारी चीजें रियल सिचुएशन में मार्केट में होती है, ठीक है। मटेरियल टू प्रोड्यूस द लड्डूज और बर्फीज, तो देखा एडल्टरिंग होता है, लड्डूज और बर्फी बनाते हैं, जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एडल्टरिंग करते हैं, मिलावट करते हैं। यू कैन रिकॉल द केस ऑफ ड्रॉपसी बिकॉज ऑफ एडल्टरेट मस्टर्ड ऑयल, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है जब मस्टर्ड ऑयल में भी मिलावटी होता है। आप जाओगे मस्टर्ड का ऑयल लेने, बट उसमें मस्टर्ड के बजाय किसी और चीज का या तो किसी और केमिकल का ऑयल मिलता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे केसेस बीमारी का मिलता है। नो मैटर हाउ बैड क्वालिटी यू गेट, चांसेस आर यू विल गेट अ rude रिस्पांस फ्रॉम द शॉपकीपर इफ यू डेयर टू कंप्लेन। मैंने यही बात बोला कि इतनी सब सारी चीजें होती है, इतनी गलत सारी बहुत गलत सारी चीजें मार्केट में होती हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी कंज्यूमर ने किसी शॉपकीपर के खिलाफ या किसी भी मार्केट के खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, रूड व्यवहार होता है, और बल्कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। If you have traveled by railways, then you can recall the horrible taste of almost all foodstuffs being sold in trains and on a platform. Even the food supplied by the rail pantry is of horrible quality. ये जो pantry होता है, रेल pantry, जैसे हमारे घर में किचन होता है, वैसे ही जो ट्रेन में pantry होता है, जो ट्रेन में किचन होता है उसको हम रेल पेंट्री बोलते हैं या तो ट्रेन पेंट्री बोलते हैं। तो इसमें यही दिखा हुआ है कंज्यूमर का जो क्या है, कंज्यूमर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मार्केट प्लेस में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्या उसकी सिचुएशन है, तो उसके बारे में मैंने देखा कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या रियलिटी में हो रहा है और क्या रूल्स बना हुआ है। एंड अगर आप में से जो भी ट्रेन में जर्नी किया होगा तो आपने देखा होगा कि ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो कितना पैथेटिक खुला हुआ खाना होता है, उसके ऊपर मक्खियां घूमती रहती हैं। इवन ट्रेन में जो पेंट्री कार से आपको फूड मिलता है, लंच ब्रेकफास्ट जो भी मिलता है, उसमें वो भी बहुत पैथेटिक होता है। कभी कभी तो देखा हुआ है कि उनके खाने में चिपकली भरी हुई रहती है। तो ये सब सारी प्रोटेक्शन जो भी कंज्यूमर राइट एक्ट है उसके बावजूद भी रियल लाइफ में ये सब सारी चीजें हैपन हो रही है, जो कंज्यूमर का राइट्स है उसको एक्सप्लॉइट करती है। कंज्यूमर मूवमेंट, अब देखिए व्हाट इज कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमने देखा कि मार्केट प्लेस पे भी बुरा हाल है कंज्यूमर का, ट्रेन में जब आप जर्नी कर रहे हो वहां पे भी उसका कंडीशन ठीक नहीं है, जब आप बस में जा रहे हो तो बस में देखा होगा कि किसी बस में अगर 36 सीट है उसमें बैठने वाले 72 है, किसके साथ बुरा हो रहा है,
वो हो रहा है हमारे कंज्यूमर के साथ, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड, हम जो पैसे दे रहे हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो हम एक सीट का पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारे सीट के आगे मतलब लेफ्ट राइट front and back, there are so many people are standing which are creating the unhygienic situation, which is creating the sophisticated environment. तो ये क्या होता है कि ये हमारा कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर राइट्स है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इसकी वजह से अभी क्या होता है कि जब तक, ये कहावत है कि आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। आपके साथ गलती हो रही है, कोई गलत चीजें हो रही है, जब तक आप उसके खिलाफ नहीं बोलोगे then nobody will listen your problem। तो ये प्रॉब्लम सुनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी? कंज्यूमर मूवमेंट की। कंज्यूमर को मूवमेंट करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। इस तरीके से इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अंडरवेइंग एक्सेट्रा। अभी क्या है कि देखिए, इसी प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इस पूरे मतलब वर्ल्ड में कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी किया जाता है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखोगे कि आप कोई सामान लेने जा रहे हो, लेने कुछ जाओगे और मिलेगा कुछ और, आपको सैंपल में कुछ और दिखाएंगे, रियलिटी में कुछ और मिलता है। तो ये सब सारी चीजें कंज्यूमर्स के साथ होती है। इसमें कुछ एनसीईआरटी बुक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड है क्या कि फॉर एग्जांपल है यहाँ पे फूड एडल्ट्रेशन, जो खाने में मिलावटी होता है, जो कोई भी चीज बनाया जाता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम मार्केट में गए देसी घी लेने, ठीक है, वहां पे पता चला देसी घी की जगह पे किसी और चीज का घी बेच रहे हैं, बट पैसा किसका ले रहे हैं? देसी घी लेंगे 1000 रुपये किलो, 1000 रुपीज केजी आपको सेल करेंगे, बट उसमें सामान किसका रहेगा? 100 रुपीज केजी होगा। तो क्या हो रहा है? एडल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग। अब व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग? हमने सुना होगा कि ब्लैक मार्केट काला बाजारी होगी। तो काला बाजारी क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, बहुत सारे सामान सप्लाई करती है जो गरीबों के लिए, जैसे मान लो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसमें क्या करती है? फॉर एग्जांपल एक स्टेट गवर्नमेंट ने किसी टाउन या सिटी में उन्होंने राइस का पूरा ट्रक भेजा कि आपके जो एरिया में बीपीएल है, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब लोग हैं उनको ये राशन बांटना है ओनली 1 रुपीज के जी। बट उसने क्या किया? उस ट्रक के मतलब 70% पार्ट को सेल कर दिया और ओनली 30% पार्ट को लेके गया अपने टाउन में। तो क्या हुआ? 70% जो है ब्लैक मार्केट में, ठीक है। होर्डिंग, होर्डिंग मतलब क्या होता है? जमा करना, किसी चीज को जमा करना। अभी आपने देखा कि कभी कभी ओनियन, चाय, पोटैटो का रेट बहुत बढ़ जाता है, उस किस वजह से होता है? ड्यू टू होर्डिंग। होर्डिंग में क्या होगा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे ओनियन बहुत कम होगा और वहां पे जब ओनियन कम होगा तो ये लोग क्या करेंगे? जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उन आगे की सोच लेते हैं कि आगे ओनियन बहुत महंगा होने वाला है, तो जो ओनियन मार्केट में है, जो मार्केट में अभी आने वाला था, उस ओनियन को भी उन्होंने क्या किया? अपने स्टोर में उसको डिपॉजिट कर लिया। और क्या हुआ? आज ओनियन 20 रुपीज के जी है तो उसको नहीं बेच रहे हैं, फिर बाद में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि ओनियन पूरे मार्केट में नहीं है, तो ओनियन 20 के बजाय क्या हो जाएगा? 80 रुपीज के जी, 100 रुपीज के जी। और जैसे ही 100 रुपीज के जी ओनियन होगा, उसके बाद धीरे धीरे निकाल के सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इट इज कॉल्ड होर्डिंग। अंडरवेइंग, देखिए अंडरवेइंग का मतलब होता है कि जो सामान आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल वही मैंने बताया था कि आप 1 केजी का कोई सामान खरीद रहे हो बट वो 900 ग्राम ही सेल कर रहे हो। वो क्या करते हैं? या तो जो 1 केजी का जो उनके पास आइटम होता है उसको या तो टेम्पर कर देते हैं, उसका वेट कम कर देते हैं, अदरवाइज उनके पास कुछ चिप लगा देते हैं नीचे, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होता है उसमें कुछ चिप लगा देते हैं, और किसी बैंक मशीन में दूसरे साइड में जिसमें हम सामान खरीदते हैं उसके साइड में मैग्नेट लगा देते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम का, तो पहले से ही नीचे रखता है। तो ऐसे वो क्या करते हैं? सामान देते हैं आपको, पैसे लेते हैं 1 केजी का, आप देते हैं 800 ग्राम। तो ये ट्रेडिशन रहा है, ये जो इंडियन मार्केट है उसमें ट्रेडिशन रहा है, सारी चीजें होती आई है और अभी भी हो रही है, ठीक है। It was from 1960s that the consumer movement began in India. Till the 1970s, consumer movement was
mainly restricted to writing articles and holding exhibitions, but there has been an upsurge in the numbers of consumer groups in recent times. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सब सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन मार्केट में थी, उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट में 1960 से लेकर 1970 तक, इट मींस 10 इयर्स तक लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया किसके अगेंस्ट में, प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट में, ठीक है, जो ये सब सारी चीजों इन सारी चीजों के अगेंस्ट में इन्होंने स्टार्ट किया। तो कैसे किया, रिस्ट्रिक्ट, और बट जो मूवमेंट था उस पर भी रिस्ट्रिक्शन था। क्या था, हम अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आर्टिकल लिख सकते थे, उसके खिलाफ एग्जीबिशन, यानी आप कोई चीज मान लो गलत हो रहा है तो आपने उस पे लिख दिया कि हाँ ये गलत हो रहा है, और उस पे एक आपने एक पिक्चर्स बनाए और पिक्चर लेके एग्जीबिशन करो, यानी प्रदर्शन करो, दिखा रहा हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। बट देयर हैज बीन, लेकिन कुछ सालों में द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स इन द रिसेंट टाइम, कुछ सालों में कंज्यूमर्स के ग्रुप जो बहुत देखिए आप सारे कंज्यूमर, इसमें से कुछ जो अच्छे माइंड के लोग हैं, जो अपना दिमाग यूज करते हैं, जो समाज को बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, जो सोसाइटी में होने वाली बुराई के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के और इसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, जो 1960 और 70 के बीच में चला था। The level of dissatisfaction with the sellers and service providers was such an extent that the consumers had no choice but to raise their voice. After many years of the organized struggle, the government was forced to take notice, and finally the Consumer Protection Act (COPRA) was enacted in 1986. तो आपने मैंने सबसे पहले बोला था कि what, when, why and how। तो ये मैंने पूछा था कि जब कोपरा 1986 की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ी, और देखिए जो गवर्नमेंट दिल्ली में चाहे किसी स्टेट के कैपिटल में बैठी हुई है, कोई भी पॉलिसी ऐसे नहीं बना देती है जब तक आप ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट नहीं करोगे, उसकी बातों को ऊपर तक पहुंचाओगे नहीं, तब तक कोई पॉलिसीज नहीं बनती, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये जो लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, जो असंतोष का माहौल कंज्यूमर के अंदर था, वो धीरे धीरे बहुत लोगों के बीच में फैल गया था, और लोगों ने बड़े स्तर पर मूवमेंट स्टार्ट किया, और वो मूवमेंट स्टार्ट किया और अपनी आवाज को उठाया। इट मींस जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके द्वारा किए हुए बहुत सारे जो गलत पॉलिसीज थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, आर्टिकल्स लिखे, उनके खिलाफ एग्जीबिशन किए, उनके खिलाफ मूवमेंट किए। वो सब कुछ करने के बाद और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपने आस पड़ोस और प्लस आपने जितने आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, सबको इकट्ठा करके उनके खिलाफ आवाज उठाना। फॉर एग्जांपल पुलिस ने कुछ किसी के साथ गलत काम कर दिया कोई थाना में, तो उस गांव के लोग उस थाने के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है जो रियलिटी जो हुआ है उस पुलिस या थाने के खिलाफ ऊपर से ऑर्डर आता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे हुआ। कैसे हुआ कि जब लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अभी जो ग्राउंड लेवल पे मार्केट लेवल पे वो जो चीजें हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है, और इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। तो जो भी पुलिस है चाहे गवर्नमेंट है, वो कोई भी एक्शन तभी लेती है जब उसके पास उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी या कोई रूल्स और रेगुलेशन होता है। तो उस कंज्यूमर के फायदे के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा वाज इनेक्टेड इन 1986। तो 1986 में जो कोपरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो 1986 में गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, और उस लॉ को बनाने के बाद मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए, बट अभी भी वो चेंजेस अप टू द स्टैंडर्ड, मतलब अप टू द मार्क नहीं है। अभी भी एक कोपरा 1986 तो है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी अच्छी तरह से
होना बाकी है। अभी भी ये जो सारी प्रॉब्लम है एडल्ट्रेशन, अंडरवेइंग एंड होर्डिंग, इस सब में अभी भी कुछ सारी चीजें हैपनिंग हो रही है जिसको रोकना जरूरी है। वो भी तब रुकेगा जब आप समय समय पे टाइम टू टाइम आप मार्केट में जाते हो, आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ आप आर्टिकल लिखेंगे, उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, तब ये सारी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आपने देखा कि मैंने पूरे सेशन में मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, व्हाट इज राइट, कंज्यूमर का राइट्स क्या होता है, इसके बाद एस्टैब्लिश कब हुआ, रूल्स लागू कब हुआ, इसके बाद हमने एक मार्क पढ़ा, फिर हमने बीआईएस पढ़ा, फिर कमीशन जो था कमीशन के बारे में पढ़ा, और फिर कंज्यूमर मूवमेंट क्या है और कंज्यूमर के जो 6 राइट्स हैं वो सब सारी चीजें पढ़ी। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।